Hello students, welcome to my channel Vikas Education Point. Students, today I will teach you worksheet 66 from social science subject Geography of class 9th, given by Directorate of Education GNCT of Delhi. Students, here is the worksheet of 14th January 2022. Today's topic is lesson 4 climate. Today I will teach you distribution of rainfall अर्थात वर्षा का वितरण. Let's read, understand and answer the given question. Dear students, part of Western Ghat and Northern India receive over about 400 cm of rainfall annually अर्थात पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है. However, it is less than 60 cm in the western Rajasthan and the adjoining part of Gujarat, हरियाणा एंड पंजाब अर्थात किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इसके सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है. Rainfall is equally low in the interior of the Deccan Plateau and the east of the सह्याद्रीज अर्थात दक्षिण पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा सामान्य रूप से कम होती है. A third area of low participation is around Leh in Jammu and Kashmir अर्थात जम्मू और कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम होती है. द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल अर्थात देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है. स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन अर्थात हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है. Dear students, owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. अर्थात मानसून की प्रकृति के परिणामस्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है. Variability is high in the region of low rainfall, such a part of Rajasthan, Gujarat and the leeward side of the Western Ghat अर्थात वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है. As such, while area of high rainfall are liable to be affected by floods, area of low rainfall are drought prone अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ें अधिक आती हैं जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड अर्थात मानसून एकता का परिचायक. डियर स्टूडेंट्स, Himalayas enable northern India to have uniformly higher temperature compared to other area on the same latitude अर्थात हिमालय के कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है. Similarly, the peninsular plateau under the influence of the sea from three sides has moderate temperature. That's why the unfailing influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. अर्थात इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार के तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी. इसी कारण भारतीय प्रायद्वीप मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है. इवन आफ्टर द अनसर्टेनिटीज ऑफ रेन एंड uneven distribution of monsoon year after year,
pupil of India from north to south and from east to west yearly await the arrival of the मानसून, अर्थात वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण होने के बावजूद उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं. These monsoon wind bind the whole country by providing water to set the agriculture activities in monsoon. अर्थात यह मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं. Let's do question answers. Answer the following questions. First question है name any two area of India which receives low amount of rainfall. Then answer this question is name any two area of India which receives low amount of rainfall. First Jammu Kashmir Leh 9.20 cm and second है राजस्थान जैसलमेर 10 cm जो है यहाँ पर लगभग वर्षा होती है. ठीक है, अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. Which rainfall in India received snowfall? Which region of India receives snowfall? तो इसका हो जाएगा आंसर snowfall occurs in the Himalayan region, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन इंडिया. तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई इज द मानसून इन इंडिया कंसिडर्ड ए यूनिफाइंग जो है बॉन्ड. ठीक है, अर्थात जो है भारत में मानसून को एकता का परिचायक क्यों माना जाता है. तो इसका आंसर लिखेंगे हिमालयाज इवन enable northern India to have uniformly higher temperature compared to other area on the some latitudes. Similarly, the peninsular plateau under the influence of the sea from three sides has moderate temperature. That why the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is क्वाइट परसिप्टेबल. अर्थात इसको हिंदी में समझ लेते हैं बच्चों. हिमालय के कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर वर्षा तापमान बना रहता है. इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार के तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी. इसी कारण भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एरिया ट्रू और फॉल्स. तो इसमें सही और गलत बताना है. स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. अर्थात भारत के सभी भागों में वर्षा का वितरण एक समान है. तो नहीं बच्चों, गलत है, एक समान नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. डेक्कन प्लाटू रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया. तो ये भी बच्चों मतलब क्वेश्चन गलत है. ये भी गलत है. कैसे? इसे कह रहा है कि एशिया में दक्कन के पठार में सबसे अधिक वर्षा होती है. नहीं बच्चों, दक्कन के पठार में सबसे अधिक वर्षा नहीं होती है. तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकली डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. थैंक यू.